हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट स्टडी। आज मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज कुछ और लेके आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 120 अभी तक हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट करेंगे। 121 से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कीबोर्ड इज, आंसर इज बोथ ए एंड बी। सीरियल कीबोर्ड एंड पैरेलल कीबोर्ड, both are type of keyboard. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which input device converts analog information into digital form and can be used for doing fine works of drawing and image manipulation? Answer is barcode reader. Next question, which one works as an आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्क करता है आउटपुट और इनपुट डिवाइस की तरफ। ठीक है, उसे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कह सकते हैं। वो है मॉडम, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे which of the following is a toggle key on a keyboard? Answer is Alt. Next question, the technology of scanning that recognize handwritten text printing text is, answer is OCR. Optical character reader is a technology of scanning that recognized handwritten text printing text. Next question, the technology of scanning that reads the check boxes contained inside a predefined space is, answer is OMR, optical mark reader. Next question, which input device converts analog information into digital form and can be used for doing fine works of drawing and image manipulation? Answer is barcode reader. Next question, the click lock property of the mouse, answer is to allow to drag without holding mouse button. Next question, which of the following is an example for input device? Answer is barcode reader. Next question, a typewriter-like tools which is used to send data or commands to the computer is called, answer is keyboard. Next question, for reading the candidate's choice in multiple choice questions, which of the following input device is generally used? Most important questions बहुत बार आपके competitive exams में आ चुका है। Answer is optical mark reader. Next question, light pen and joystick are, answer is input device. Light pen and joystick are input devices. Next question, trackball falls into which of the following category? Answer is input device. Trackball आपका एक input device है. Next question, which of the following looks like an upside down mouse that requires the ball to be rotated manually with a finger for moving the cursor on the computer screen? Answer is joystick. Next question, in recognition technology, OMR is used. What does M stand for? Answer is mark. ठीक है, optical mark reader. Next question, touchpad is a good alternative to the mouse. It is an example of pointing device. Next question, who recommend to you interact with a computer such as mouse or keyboard? Have a label. Answer is input. ठीक है, next question, quarterly refers to, ठीक है, arrangement of keys on a standard English computer
कीबोर्ड और राइटर। दिस इज ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्टरली आपको पता है ना कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड का स्टार्टिंग पे आप देखोगे ऊपर टॉप पे फंक्शन की के नीचे आपको कीज दिखेंगे, QUERTY फर्स्ट लाइन में, उसी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली ए क्वार्टरली कीबोर्ड हैज, जो क्वार्टरली कीबोर्ड है, क्वार्टरली कीबोर्ड कैसे बोलोगे, कैसे आप देखोगे क्वार्टरली कीबोर्ड है क्या है? क्वार्टरली कीबोर्ड है जैसे आप कोई अभी आप रिसेंटली जो यूज कर रहे हो क्वार्टरली ही है। आप देखोगे जो फंक्शन की के नीचे वाली जो लाइन है स्टार्टिंग में क्या होगा, ABCD नहीं लिखा होगा, सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा होगा, वैसे लिखा होगा QUERTY। पूरी कीबोर्ड की कितने कितने कीज हैं? तो आंसर इज 104। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज द नंबर पैड एज ए डायरेक्शनल एरो द डैश की इज प्रेस्ड। आंसर इज नम लॉक। ठीक है, राइट साइड पे आप देखोगे आपको नंबर्स लिखने होंगे, नंबर्स ऊपर फंक्शन की के नीचे भी होंगे, उसके साथ सिंबल होंगे। जब उस सिंबल को हमें लेना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट प्लस करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ फिर उसको प्रेस करना पड़ता है, तो जाके सिंबल्स आते हैं। अगर हम सिंपल वो प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। उसके अलावा अगर हमने नंबर टाइप करने होंगे तो कैसे करेंगे, राइट साइड पे आपको एक नम लॉक ऑप्शन दिखेगा, वो एक आप नम लॉक नंबर पैड होगा उसको बोलेंगे, नम लॉक को ऑन करोगे तो आप नंबर कोई भी टाइप करोगे तो टाइप होगा। समटाइम्स आप टाइप कर रहे होते हो, आप देखते हो कि वो कुछ नंबर्स टाइप ही नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे जो नम लॉक ऑप्शन की को आपको ऑन करना होता है, उसके बाद आप नम लॉक को ऑन करके फिर आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे शिफ्ट की एंड प्रिंट की, शिफ्ट की एंड प्रिंट स्क्रीन के इन ए कंप्यूटर कीवर्ड आर नो एज, इसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम डम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डम टर्मिनल्स हैव मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट टू द कर्सर। अब देखोगे आप कोई लेफ्ट में जो आपने कोई लिखा, जैसे कोई आपने लिखा, चलो यही लिखा आपने कर्सर, CURSOR, आर तक लिख दिया, उसके बाद आप आर को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आर को कैसे डिलीट करोगे, आप बैक स्पेस दबाओगे, उससे आपका लेफ्ट साइड से क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a mistake is made during typing by pressing which of the following key on the mistake can be removed। सेम मीनिंग है, मतलब कि अगर हम आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको इरेज कैसे करोगे, बैक स्पेस की से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरो कीज, होम कीज, एंड की, पेज अप एंड पेज डाउन कीज इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड आर क्लासिफाइड एज, इसे हम क्या बोलेंगे, एरो की को, ठीक है, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन कीज, इसको हम बोलेंगे नेविगेशन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a modifier key is an IBM computer। ठीक है, आप देखो कंट्रोल शिफ्ट और विंडोज कीज ऑल आर मॉडिफाई की इन एन IBM component but tab is not a modifier key। तो हमारा राइट आंसर है टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर कीबोर्ड जनरली हैज फंक्शन की, फंक्शन की आपको पता है F1 F2 F3 लिखा होता है, हर एक फंक्शन की का अलग अलग पर्पस होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रेस करते हैं। ठीक है, जब कभी कभी हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F4 को प्रेस करते हैं तो हमारा शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हर एक फंक्शन का अलग अलग पर्पस है। ठीक है, अब वो फंक्शन की कितनी होती है कंप्यूटर की, आप देखोगे कितनी होती है, F12 होती है। कौन कौन सी, F1 F2
F3 या 4 F12 तक होती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है 12। ए कंप्यूटर कीबोर्ड जनरली हैज 12 फंक्शन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, क्या है हमारी ये मॉडिफायर कीज बोलते हैं इसको, कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज वर्क इन ए टॉगल मोड इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा कैप्स लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where in a computer would you use a joystick for computer games and assistive technology, हमारा राइट आंसर है कंसोल कंट्रोल, ठीक है। आज हमने किए 121 से 150, मतलब हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट लेके आऊंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे जेकेएस एसपी यूनिट असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपका आईबीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, बैंक के ऑल एग्जाम्स, एसबीआई पीओ क्लर्क, ये सभी एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर सेक्शन पार्ट होता है, उसमें ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। वही एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट आप सबके लिए लेके आती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज लेके आऊंगी, और हम और भी इंग्लिश ग्रामर का भी एक आपने मैंने पढ़ाया था आपको वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स को टेंसेस में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब्स करना है, वर्ब्स क्या होता है काम, उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो हमें टेंसेस की वीडियो लेके आऊंगी, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से इजी वे में एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि टेंसेस क्या होता है, जिससे आप क्या करोगे समझ के खुद भी प्रैक्टिस करोगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको वो सारे टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी बहुत इजी से इजी तरीके से आपको समझाऊं, जिससे आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे, ना ही आपको कुछ याद करना पड़े। जैसे हम स्कूल्स में लर्न करते थे फिर वो हमें भूल जाता था, हम उस तरीके से नहीं, हम टेंसेस करेंगे बहुत इजी तरीके से, उसको प्रैक्टिकली हिंदी में समझकर उसको अपनी लाइफ में यूज करके, जो ताकि आपको वो कभी भी फ्यूचर में लाइफ टाइम, कभी भी फ्यूचर में याद नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको वो टेंसेस इजी वे में समझाने की, ठीक है। और एमसीक्यूज भी कंप्यूटर की और बहुत सीरीज पे चलती रहेगी, एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट, उसके साथ हम कुछ और सब्जेक्ट्स के भी पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सब प्रिपेयर कर रही हूँ, जल्दी ही आप सबको वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़े एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे और साथ में लर्न भी हो गए होंगे, ठीक है। तो तब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइल।